Vidar Mahesh Mandal, Pune, and we have come up with this session. I'm sorry. We have come up with this session for all the Maheshwari community. The whole purpose of this session was कि हम लोग काफी बार बात करते हैं कि भागवत गीता की बात करो या संस्कार की बात करो, वेद की बात करो, एंड वी वांट टू स्टार्ट इट लिटिल लेट. हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें बड़ों के लिए है, बट वी वांटेड कि यंगस्टर्स को हम ये सारी चीजें सिखाएं, खुद भी सीखें, ताकि यंगस्टर्स का ऐसे है कि दैट इज स्टार्ट ऑफ द लाइफ. तो इफ वी लर्न दीज थिंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ, इट वुड बी गुड कि हम ये चीजें सीखें, हम इनको साथ में लेके जाएं, हम समझ पाए कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, किताबों में क्या लिखा है, वेद क्या है. ये सारे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं, बच्चों के दिमाग में होते हैं. So we had Jayesh ji as part of Vidar Mahesh Mandal. Already he is part of VMM, and we will be giving his brief introduction. So I won't take too much of time. I would like to thank everybody who has registered themselves, and you can still tell your friends, relatives to please join this session. And I would also request this is there for 7 days. So everybody please try to come every day for next 7 days. This is just the beginning, as the name also says. We definitely can go for phase 2 and phase 3 of this GPS system, so that it would be a great learning for us. I would give this over to Dilip Ji Rathi, who is coordinating the session. He'll briefly introduce our speaker for the day, and then Jay Ji can continue. Dilip Ji, over to you. Okay. Yeah. Thank you, दीदी. जय श्री कृष्ण. अपने आज के स्पीकर या अपने इस 7 डेज सेशन के स्पीकर रहेंगे श्री जयेश जी भांगड़िया. ही इज एन IT consultant and developer for last 5 years. Before, like, it was his past experience. Before to that, he was also a training and placement officer. Currently, he is a co-founder for My Secret Trip. ये इनका खुद का वेंचर है. So he's part of that. Spiritually, he's practicing a spiritual life since last 16 years. He's connected with ISKCON. He's disciple of Holiness Radhanath Ji Swami. So he's completely into the spirituality of the spirituality life, and following all the good things what we can have in our life. He also works as mentor and counselor for youth. So he manages some events, like he take events for youth to mentor them and to counsel them. So this is his spiritual part, and he's really enthusiastic of talking with youths, uh, discussing different spiritual factors with youths. Loves traveling, and he also loves reading biographies. So ज्यादा टाइम ना लेते हुए, over to you, Jayesh ji. We can start out. Yeah, thank you so much, Dilip ji, for your kind introduction. तो सबसे पहले मैं आउटसेट में विदर्भ महेश्वरी मंडल पूना का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली केसी भैया who is leading us in this discussion, Padma ji who is the president for us, Rajesh ji who was the person actually who called me initially, और उन्होंने मुझे पूछा था, तो मैं काफी उत्साहित हो चुका था. So and fortunately it happens to be his birthday, and we chose that we start on his birthday. So it's surely, I hope this is going to be one of the best gifts probably everybody will receive from him, and also we are going to give him. And Gaurav ji and Dilip ji, so thank you so much. So we go ahead with it. So this is entitled as, you know, GPS God Positioning System. So this is based on whatever I have learned in my spiritual practices last 16 years. So whatever I'm going to speak is basically, whatever good I'm going to speak is going to be based on the teachings I've received from Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada, from my spiritual master Radhanath Maharaj, and there have been many spiritual teachers in my life who have been guiding me constantly. So I'm really grateful to them, and also to my parents who have been really a very important foundational force for me in my life throughout the journey. So let's take it up ahead. Let's see. Yeah. Okay. So let's talk about, you know, the first thing which comes in the Vedanta Sutra. You know, Vedanta Sutra is
So we'll go into the Vedas and everything later on, but I want to make this point very clearly. You probably can see a lot of question marks behind me, and maybe अच्छा, मैं कोशिश करूंगा मैं जितना ज्यादा हो सके हिंदी में बोलूं. दिलीप जी प्लीज यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन मी, बिकॉज मेरे लिए बहुत आसान है मैं इंग्लिश में मूव हो जाऊं. Whatever possible, जितना भी हो सके मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा. तो आप मेरे पीछे काफी प्रश्न चिन्ह देख रहे होंगे. इतने सारे प्रश्न चिन्ह क्यों है? इट्स बिकॉज क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ जो होता है या वैदिक नॉलेज जो है, वैदिक धर्म जो हमारा है, वो कभी भी एक तरफा नहीं होता है. आप किसी भी वैदिक ग्रंथ को उठा के देखिए, उसमें हमेशा प्रश्न और उत्तर ही होता है हर चीज में. भगवत गीता भी देखोगे तो भगवत गीता कृष्ण अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं और कृष्ण ने उनको जो उत्तर दिए. श्रीमद् भागवत भी वैसे उस तरह से सारे वैदिक लिटरेचर होता है. उस तरह से सारे जितने भी हमारे ग्रंथ है उसमें सब में क्वेश्चन आंसर ही आता है. और जो वेदांत सूत्र है, वेदांत मतलब जो वेदों का अंत है, जो सार है वेदांत का, उसका जो पहला श्लोक शुरू होता है, जो पहला एफॉर्मिज्म है, उसको शुरू होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. तो जो जिज्ञासा है, हम लोगों को हर तरह की जिज्ञासा होती है जीवन में. मतलब मनुष्य है तो वो जिज्ञासा करता ही है. तो किसकी जिज्ञासा करना है? ब्रह्म की, द समथिंग बियॉन्ड, जो हमारे ऊपर है, भगवान की जिज्ञासा करना है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वेदांत सूत्र. तो अभी मैं इसके बाद आपको आउटलाइन बताऊंगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इन टुडेस सेशन. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या होता है और हमको अध्यात्म क्यों जरूरी है अपने जीवन में. स्पेशली आजकल का जो मॉडर्न यूथ है, मॉडर्न जनरेशन है, उनके लिए बहुत जरूरी है समझना कि एक्चुअली रियल अध्यात्म क्या होता है. बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हमको सही से प्रेजेंट नहीं किया गया अध्यात्म, इसलिए हम लोग शायद उस तरफ झुकते नहीं है. तो हम आज कोशिश करेंगे उसको देखने की, और फिर हम देखेंगे कि धर्म और रिलीजन, इसमें अंतर है. ये दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों जुड़ी हुई है. कैसे जुड़ी है उसका देखेंगे. और उसके अलावा बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारे वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में. थैंक्स टू सो मेनी पीपल, जिसके वजह से हम लोग सही से हमारा हिस्ट्री है सही से जानते नहीं है. बहुत लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. तो हम उसके बारे में कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे. सारे तो एग्जांपल्स हो नहीं सकते. इनफैक्ट अगर आपको सिर्फ मिसकंसेप्शन को क्लैरिफाई करना है तो हम काफी सेशंस हो सकते हैं इसके ऊपर. और जो लास्ट का पार्ट है वो रिकिंडलिंग विजडम है. उसको मैंने रिकिंडलिंग विजडम नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जो ज्ञान है, विजडम, यानी विजडम क्या होता है, यूजुअली अपने पास में जो कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं. आजकल हम लोग काफी बात करते हैं डेटा डेटा डेटा. तो डेटा क्या होता है? काफी ब्रॉड चीज होता है, राइट. जैसे क्रिकेट का मैच होता है, क्रिकेट मैच में डेटा होता है कि ये प्लेयर ने इतने रन बनाए, उसने इतने सिक्स मारे, ये डेटा हो गया. फिर उससे क्या होता है? उससे इंफॉर्मेशन निकलता है कि ये प्लेयर कैसा है, उसका स्ट्राइक रेट कैसा है, और उसके साथ में किस तरह का उसको बॉलिंग किया जाए, ये इंफॉर्मेशन निकलता है उससे. और उसके बाद जो विजडम होता है, जो एप्लीकेशन होता है उसका, कि इसको कहाँ पे बॉलिंग करना है जिससे आउट हो, कहाँ पे बॉलिंग नहीं करना है जहां से, तो ये विजडम हो गया. तो विजडम ये इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है. तो उसके अंदर हम कुछ चीजों की चर्चा करेंगे वेद के बारे में, कि वेद का एक ब्रीफ समरी, टोटल वेद क्या होते हैं हमारे, कितने वेद है और उसके अंदर क्या क्या ब्रांचेस है, वो सारा देखेंगे हम लोग. और हम जो नॉलेज है, हाउ डू वी गेन नॉलेज, किस तरह से हम नॉलेज को ग्रहण करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे. और फिर हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज से पुराने, उसका कुछ एक ब्रीफ समरी में आपको दूंगा. फिर कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में भी बात करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे संस्कृति में स्त्री का क्या महत्व था और कितना इंपॉर्टेंस था, उसके बारे में भी कुछ एग्जांपल्स देंगे. एंड फाइनली जो मुझे लगता है काफी यूथ को जानने में बड़ी उत्सुकता होगी, कि हमारे वेद सिर्फ रिलीजन या रिलीजियस बुक्स नहीं थे, उसके अंदर बहुत सारा साइंस टेक्नोलॉजी जो आज देखते हो, वो सब कुछ वेद में अवेलेबल है. और इसके अंदर भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ शुरुआत करने से पहले, कि आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए, आपका हाथ उठाइए जब भी आपको क्वेश्चन होता है, और अगर पॉसिबल हो तो नोट्स भी बना सकते हो आप. और यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल से एनालॉजीज दूंगा तो इसका उस सब्जेक्ट को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए देने की कोशिश करूंगा. अगर किसी का कोई पर्सनल बिलीफ, पॉलिटिकल, रिलीजियस बिलीफ हर्ट होता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट एट द आउटसेट. संस्कृत मेरा इतना प्रभावशाली नहीं है, तो अगर कुछ त्रुटियां होती है उसमें तो प्लीज कृपया मुझे क्षमा करें उसके लिए. और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है आगे, तो पेशेंस, धैर्यता बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी फील्ड में आप लाइफ में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को क्रिकेटर भी बनना है तो उसको काफी प्रैक्टिस करना पड़ता है, कंटिन्यूसली हर दिन करना पड़ता है उसको. उसी तरह से
हमको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको कितना साल लगता है, अगर मैं आपको कहूंगा कितना साल लगेगा, तो शायद मुझे काफी लोग जवाब देंगे कि 6 साल, 8 साल, 10 साल, एमडी बनना है तो। नहीं, मेरा जवाब, ये आंसर आपका पूरा सही नहीं है, अधूरा है, क्योंकि इसके पहले आपने काफी जीवन का अपना समय डाला है। नर्सरी से लेके 12th तक, फिर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद आपको एडमिशन मिला है, तो ऑलमोस्ट 25 साल अपने डाले सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस। लेकिन डॉक्टर जब एमबीबीएस बन जाता है, वो नहीं बोल सकता है कि मैं पूरी तरह से, मुझे मेडिसिन का नॉलेज पूरा है। वो फिर स्पेशलाइजेशन करता है, उस स्पेशलाइजेशन में भी उसका एक ही पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होता है। तो इतना पढ़ने के बाद में भी वो किसी एक चीज का ही स्पेशलाइजेशन होता है। तो जब हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं, वैदिक नॉलेज की बात करते हैं, यूजुअली क्या होता है, इंडिया में बड़ा कॉमन है ये। आप इंडिया में किसी से भी पॉलिटिक्स के बारे में पूछो, क्रिकेट के बारे में पूछो, या धर्म के बारे में पूछो, सब लोग ज्ञानी हैं, सब लोग पंडित हैं, सब अपना अपना मत प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कोई उसको डिटेल में पढ़ता नहीं है आज तक। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन होगा कि भगवत गीता में 700 श्लोक है, भगवत गीता में ये बोला गया, वो बोला गया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अप्लीकेशन कैसे होगा अपने जीवन में, उसको कैसे उतारना है हमारे जीवन में, या कुछ उसमें डिफिकल्टीज है, तो उसके लिए क्या होता है, आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसी भी चीज को आपको समझना है, उसके लिए आपको काफी समय अपने जीवन का उसमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं सारे जो भी आज प्रेजेंट है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली ये नॉलेज इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि समुद्र से भी गहरा है, और हम उसमें से सिर्फ एक बूंद को टच करेंगे, और वो एक बूंद हमारे लिए बहुत है अगर हम एक बूंद को भी सही से समझे, लेकिन उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। हम कोशिश करेंगे जितने आपके प्रश्न है उतना उत्तर हम आज देने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे आप सेशन अटेंड करते जाइए, हो सके हम जितना आपका उत्तर समाधानी उत्तर आपको दे हम। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि टाइम जो है हमेशा एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि इतना वास्ट इसका सब्जेक्ट मैटर है। और एंड में हम आपको फीडबैक लेंगे आपसे कि कैसे हुआ सेशन, तो कि हम इम्प्रूव कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए, कल से हम लोग क्विज लेंगे। आज जो सेशन हुआ उसका क्विज आपको स्टार्टिंग में होगा कल, और जो भी आंसर देगा उनको स्पेशल प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, और अगर कुछ टेक्निकल इशू आता है तो आप प्लीज दिलीप जी राठी से कॉन्टेक्ट कीजिए। सो लेट्स एंटर इनटू द सेशन नाउ। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अध्यात्म क्या होता है? तो स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली नॉट जस्ट नॉलेज, सिर्फ नॉलेज नहीं है। आई थिंक देयर इज सम नॉइज कमिंग, कैन समबडी प्लीज म्यूट इट? या सो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? बेसिकली स्पिरिचुअलिटी, लोगों को लगता है कि सिर्फ नॉलेज लेना है। नॉलेज, यस, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज नहीं है, उसके साथ में कल्चर आता है, जो उसके साथ में हम जो प्रैक्टिस करते हैं, अपना सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है डिवोशन। हमारा जो किस पैशन से, किस भाव से हम उसको करते हैं। तो एग्जाम्पल, अभी एजुकेशन मतलब क्या हो गया? एजुकेशन के बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, आप सही जगह पे सही चीज का इंक्वायरी करो, तभी आपको एजुकेशन मिलेगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप किधर भी, ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाके, आप वहां पे जाके कुछ होटल में कुछ खाना ऑर्डर करोगे, होटल में जाके आप डॉक्टर के बारे में नहीं पूछोगे। हर जगह का एक पर्पस होता है। तो सिमिलरली जब आप स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना चाहते हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन आपको एक सही इंसान के साथ सही जगह पे करना जरूरी है। कल्चर बेसिकली एक हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर सके। तो उदाहरण के लिए मैं दूंगा, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि बच्चे शायद इससे रिलेट कर पाए। जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है फिर से, तो उसको पहले एक एजुकेशन भी लेना पड़ेगा कि क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, 11 प्लेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर होता है, यू नो, देयर इज अ पुल शॉट, देयर इज अ हुक शॉट, देयर इज अ कवर ड्राइव, इतने सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं उसके अंदर। तो ये एजुकेशन थेरोटिकल हो गया। अगर किसी को पूरी तरह से थेरोटिकल एजुकेशन भी है, तो क्या वो क्रिकेट खेल पाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बहुत फेमस कमेंटेटर है, बहुत विद्वान है, हर्षा बोगले जी, यू नो, ही वाज नेवर अ क्रिकेटर, लेकिन उनका एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वो खेल नहीं पाएंगे। ही कैन नेवर बिकम अ प्लेयर। व्हाई? बिकॉज वो एक एनवायरनमेंट, जो माहौल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ग्राउंड पे जाके आप प्रैक्टिस करो, और आपके कोच होते हैं, आपको कोच गाइड करते हैं, वो एक कल्चर हो गया। और ये सब मिलने के बाद में भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उस इंसान में, जो क्रिकेटर बनना चाहता है, उसमें पैशन होना चाहिए। जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं, उसमें क्या पैशन है, क्या जुनून है क्रिकेट खेलने का, तो एक डिवोशन है उस गेम के लिए उनको। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, ये 3 चीजों से है, एजुकेशन, कल्चर, डिवोशन, और तीनों भी जरूरी है। इसमें से अगर एक भी मिसिंग है तो शायद आप सही स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है। स्पेशली अभी मैं माहेश्वरी समाज की बात करूंगा, तो हम लोग अगर देखें तो हमारे पास में तीनों चीज काफी हद तक है, लेकिन प्रोमिनेंटली अगर एक चीज प्रोमिनेंट है माहेश्वरी समाज में, वो है कल्चर।
हम लोगों के पास बहुत अच्छी संस्कृति है, हमारे घर के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है हम जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो एजुकेशन है, प्रॉपर स्पिरिचुअल एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर हमको शायद मिलते नहीं है, या हम उसको खोजते नहीं है, या खोजते भी है तो सही जगह खोजते नहीं है, तो मिलता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर आप बात करें तो एजुकेशन का जो है, वो एजुकेशन हमको एक बुक है जो इनफ है हमको स्पिरिचुअल लाइफ का एजुकेशन देने के लिए, वो है भगवत गीता। भगवत गीता ही क्यों बोल रहा हूं मैं, शायद हो सकता है बहुत यूथ को क्वेश्चन हो सकता है कि भगवत गीता ही क्यों थोप रहे हो, देयर आर सो मेनी अदर रिलीजियस बुक्स इन द वर्ल्ड, व्हाई आर यू टॉकिंग ओनली अबाउट भगवत गीता। तो हम आगे देखेंगे कुछ अगले सेशन में, भगवत गीता डजंट टॉक अबाउट रिलीजन एट ऑल, भगवत गीता टॉक समथिंग डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, बहुत उसमें गहराई है भगवत गीता में, उसको समझने के लिए हम प्रयास करेंगे अलग सेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो एजुकेशन के लिए स्पिरिचुअलिटी में, वो है भगवत गीता। कल्चर के लिए हम देखते हैं बहुत हमारे भागवत पुराण है जिसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो अलग अलग भक्त होके गए, जैसे हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये तो कितने छोटे उम्र में बालक थे, तो उनको एक कल्चर मिला हुआ है। और उसके साथ साथ डिवोशन जो है, डिवोशन ऐसा नहीं कि डिवोशन अलग से होता है, डिवोशन आपका एजुकेशन के साथ में भी डिवोशन चाहिए और कल्चर के साथ में भी डिवोशन चाहिए। तो आप डिवोशन को कभी भी स्पिरिचुअलिटी से सेपरेट नहीं कर सकते, वो अभिन्न नहीं है, वो उसका इंटीग्रल पार्ट है डिवोशन स्पिरिचुअलिटी का हमेशा। अभी दूसरा प्रश्न होगा कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस ही क्यों करे, उसकी जरूरत क्या है लाइफ में, यू नो। तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्चुअली थैंक कोरोना वायरस, यू नो। लोग एक्चुअली एटलीस्ट थोड़ा भी सोचने लगे हैं, काफी मतलब अपने लोगों के बारे में नहीं, इन जनरल पीपल आर थिंकिंग अभी से कि हमारे बाहर भी कुछ कंट्रोल के बाहर में है इस दुनिया में, ठीक है। तो लोग फिर अभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग ढूंढ रहे हैं कि नॉलेज, यू नो, बाय नेचर हम जो है हम हमेशा कुछ नॉलेज ढूंढते रहते हैं। जैसे लोग न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, न्यूज क्यों देखते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए, राइट। उसके अलावा हमको ऐसा भी नॉलेज चाहिए जो परमानेंट है, जो कभी हमारे मेमोरी से डिलीट ना हो, परमानेंट रहे। तो हम हमेशा इटरनल, यू नो, इटरनल चीजें हमको चाहिए रहती है लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा प्रेम के खोज में होते हैं, लव के खोज में होते हैं। लव जो है वो बड़ा डीप सब्जेक्ट मैटर है। लव ये नहीं कि जो बॉलीवुड में दिखाया जाता, वो लव नहीं है, ठीक है। लव एक बहुत स्पेशल फीलिंग है जो सेक्रीफाइस से उत्पत्ति होती है। लव मीन्स एक्चुअली सेक्रीफाइस करते हैं हम किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए। तो नॉलेज, इटर्निटी एंड लव, तो ये हम सीख करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म है, जो हमको इसके तरफ लेके जाता है। फिर ये जो PQ, IQ, EQ, SQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फिजिकल क्वेश्चन होता है जो हमें, फिजिकल क्वेश्चन इज यू हैव टू बी वेरी फिट, यू नो, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, तो ये एक नॉलेज फिजिकल क्वेश्चन का हो गया जहाँ पे आपका बॉडी फिट होता है, वो जरूरी है। फिर उसके बाद है IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आपका लॉजिकल थिंकिंग कैसा है, आप कैसे आंसर करते हो, क्वांटिटेटिव आपका कैसा है एप्टीट्यूड, तो ये आपका IQ हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है, आपको तरक्की करना है तो। EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, जो हमारे भाव होते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है जीवन में, हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आएगी, लेकिन उस सिचुएशन में हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिचुएशन को, वो हमारा इमोशन क्वेश्चन डिसाइड करता है। तो ये तीन चीजें लाइफ में सब लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेद नहीं बोल रहे, इनफैक्ट मॉडर्न साइंस है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, स्पेशली जापानीज कंपनी एंड मेनी वेस्टर्न कंपनीज, उन्होंने रियलाइज किया कि ये तीनों जरूरी है। इसके साथ साथ उस इंसान में अगर स्पिरिचुअल क्वेश्चन उसका बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए परफेक्ट एम्प्लॉय बन सकता है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या होता है, बेसिकली बहुत सिंपल है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है ये समझना कि मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, और भगवान कौन है, और भगवान से मेरा रिलेशनशिप क्या है। अगर ये इंसान समझ जाए तो उसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत हाई होता है। ये फंडामेंटल चीज है स्पिरिचुअलिटी की, इससे मतलब इसके आगे तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर ये समझ में आए तो बहुत बड़ा चीज है। तीसरा चीज है इंपॉर्टेंट, कि स्पिरिचुअलिटी जो है ये कोई एक अंतिम गंतव्य नहीं है, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। तो एक बड़े फेमस ऑथर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है। उन्होंने कोट लिखा है कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। इसका मतलब ये हुआ कि हम मनुष्य नहीं है अध्यात्म के राह पर, बल्कि हम आध्यात्मिक जीव है जो मनुष्य की राह पर है। यू नो, आई जस्ट रिपीटेड, यू नो, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। तो हमारा जो जीवन है ये कंटिन्यूअस एक जर्नी है। जैसे
आप ट्रेन में बैठते हो किधर जाने के लिए या फ्लाइट में बैठते हो, आपको सभी कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, अब घर में हम लोग, लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ है इसमें हर मोड़ पे, हर समय पे हमारे लाइफ में अलग अलग ऑप्शंस आएंगे हमारे पास में, हम क्या चॉइसेस करते हैं उस वक्त, उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। हर समय हमको, हर मौके पे भगवान हमको एक चॉइस देंगे कि हम क्या ले और क्या ना ले, उसके बाद फिर हमारा डेस्टिनेशन भी डिसाइड होगा। यूजुअली लोगों को ये होता है कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी इसलिए प्रैक्टिस करूं ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे वैकुंठ मिले। ठीक है, दैट इज करेक्ट, बट दैट इज नॉट कंप्लीट। ये डिफरेंस होता है। देखो अभी स्पिरिचुअलिटी में क्या है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सही होना और संपूर्ण होना। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपका सही है, लेकिन ये पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली लोग जब स्वर्ग की बात करते तो बहुत बार हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन जो जर्नी होती है हमारी लाइफ की शायद उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन स्पिरिचुअलिटी, दैट वी आर ऑन अ जर्नी, नॉट लुकिंग फॉर अ डेस्टिनेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअलिटी से, ये फायदा होगा कि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो हम बोलते हैं एकता होनी चाहिए दुनिया में। ठीक है, बहुत लोगों को अंडरस्टैंडिंग होता है कि एक्चुअली इस दुनिया में जितना भी वॉरफेयर हो रहा है, अभी तो कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिहाद या जो कुछ भी होता है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिलीजन। रिलीजन इज कॉजिंग वॉर। ये गलत है, क्योंकि लोगों को रिलीजन का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहले तो रिलीजन क्या है ये देखना जरूरी है हमको, और स्पिरिचुअलिटी क्या है ये देखना जरूरी है। लेकिन एक्चुअली अगर कोई भगवत गीता के फाउंडेशन, सिर्फ कुछ 3-4 श्लोक भगवत गीता के, 3-4 क्या मैं बोलूं, एक श्लोक भी अगर अप्लाई कर दे तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमारे जीवन में आ जाएगा। इतना इजीली पॉसिबल है वो। फिर और एक उसका एडवांटेज होता है कि हमारे जीवन में हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। आपको काफी लोग हैं, काफी मोटिवेशनल स्पीकर्स है जो हमेशा बात करते हैं कि जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा होपफुल रहो, होपफुल रहो। लेकिन आपको जो ट्रू पॉजिटिविटी, मैं अपने खुद के उदाहरण से बोल सकता हूँ कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आएगी जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगा, एक नॉलेज होगा, तो आप हर सिचुएशन को फेस करने की ताकत रखोगे। अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में, ऐसा नहीं है स्पिरिचुअलिटी में कि अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह से फेल हो जाते हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो, नहीं, आपको उस जगह से खड़ा होना है, फिर से चलना है। यू नो, दैट्स व्हाट आई सेड, इट इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो डेफिनेटली हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम उठ के हमेशा एकदम बोल्ड रहेंगे। डिफिकल्टीज जब भी आएंगे हम उठ के फिर से खड़े होंगे। तो हमेशा हमारे लाइफ में होप होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमारे लाइफ का। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारा जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज हमारा जो स्वभाव है वो हमको समझ में आता है जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं। तो साइकोलॉजी एक्चुअली जो मॉडर्न साइकोलॉजी बताया जाता है, डेफिनेटली इट इज वेरी गुड, बट ओरिजिनल साइकोलॉजी का नॉलेज हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हम उसको आगे डिटेल में देखेंगे। और एक चीज होता है, स्पिरिचुअलिटी जो है ना हमको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग ना बहुत गहरा हो जाता है। हम सब लोगों को एक इक्वल विजन से देखते हैं, हम किसी को कम ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं देखते, तो हमको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का मौका मिलता है। डेफिनेटली हम रिस्पेक्ट करते हैं सबको। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ जो है, इट इज अबाउट प्रैक्टिस। मैं पहले बोलना भूल गया आपको, स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक अ साइंस, इट्स अ साइंस। हम साइंस में क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिकल करते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद में जब प्रैक्टिकल होता है उससे हमको ऑब्जर्वेशन आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है। स्पिरिचुअलिटी भी साइंस ही है। आप थ्योरी पढ़ो, उसको आपके लाइफ में अप्लाई करो, और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर आपने उसको सही से अप्लाई किया और सही चीज को अप्लाई किया, आपको खुद को अपने जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि देयर इज अ पावर बियॉन्ड यू। और ये जो है ना, ये आप कितना भी सुन लो, कितने भी लेक्चर में, कहीं पे भी, कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, ये आपको एक्सपीरियंस जब तक आप नहीं करोगे, आप इसके बारे में मतलब एक्सप्रेस कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे, थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एंड एक्चुअली प्रैक्टिस जो है हर क्षेत्र में हमारे लाइफ के, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें हमको प्रैक्टिस नहीं करना है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है हर चीज का। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब हम हेलो, कोई क्वेश्चंस है अभी तक के स्पिरिचुअलिटी पर? ओके, आई थिंक वी कैन गो अहेड, सम क्वेश्चन दे कैन रेज अ हैंड। ओके, आई गो अप। स्पिरिचुअलिटी जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे अंदर बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, पॉजिटिविटी आती है। अभी थॉट्स, जो हमारे थॉट्स है, थॉट्स बिकम एक्शंस, राइट? एक्शंस बिकम आवर हैबिट। अगर हम कुछ सोचते हैं तो एक्शन में जैसे किसी को आइसक्रीम खाना है, थॉट आ गया, राइट? आइसक्रीम मुझे जाके खाना है, आइसक्रीम जाके खाना है,
तो वो क्या करेगा, फिर जाके आइसक्रीम पार्लर पे जाएगा, नेचुरल से जाएगा, उसका फेवरेट जो फ्लेवर है आइसक्रीम को खाएगा। उसके बाद अगर उसको रोज उसकी आदत लग गई, रोज उसको जाना है तो उसको हैबिट लग जाएगी उसकी, ठीक है। ऑफकोर्स कैरेक्टर और डेस्टिनी उससे डिसाइड नहीं होगा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थॉट एक्शन हैबिट। तो उसी तरह से हमारे लाइफ में अगर हम पॉजिटिव थॉट्स लेंगे तो हमारे एक्शंस भी उसी तरह से होंगे, फिर हमारे हैबिट्स भी अच्छे डेवलप होंगे। जैसे हमको सुबह जल्दी उठने का आदत लगाना है तो हमको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, राइट। सुबह जल्दी उठना है तो उसके लिए मुझे कुछ एक्शंस भी करना पड़ेगा। हो सकता है शायद जल्दी उठूं, अलार्म लगाओ, किसी को बोलूं, और हम स्ट्रगल करते रहेंगे हमारे लाइफ में, लेकिन हमको कंटिन्यूअसली उसके लिए ऊपर एक्ट करना है। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमको उसकी आदत लग जाएगी और वो हमारा स्वभाव बन जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। और फिर हमारा डेस्टिनी, ऑफकोर्स डेस्टिनी डिसाइड होगा। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, हम बोलते हैं अर्ली टू राइज, अर्ली टू स्लीप मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, राइट। तो जल्दी उठ के अगर हम कुछ अच्छे कार्य करेंगे हमारे जीवन में तो हमारा जो भविष्य है वो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू हैव राइट थॉट्स। इफ यू हैव अ थॉट, यू हैव अ वेरी गुड डेस्टिनी। आपका भविष्य बहुत सही हो जाएगा अगर आप सही थॉट्स लोगे तो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे धर्म वर्सेस रिलीजन। अगर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज आप मुझे बताइए, ठीक है। दिलीप जी, यू कैन चेक विद पीपल इफ मुझे आई एम गोइंग टू क्वेश्चन है। फास्ट। या या श्योर। या मुझे क्वेश्चन है, जब आप, क्या आप पिछले साइड पर जा सकते हैं? हाँ, हम जब जी, थॉट्स बोलते हैं ना, हाँ तो हाँ, मुझे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है जब भी कोई एक्शन लेना है। हम्म, तो मुझे कुछ मुझे कुछ एक्शन के लिए कुछ तो भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। बराबर है, राइट। थॉट तो रहता है सुबह उठना है, ठीक है, हम्म, लेकिन जब तक क्या मुझे कोई काम नहीं है तो मैं क्यों उठूं, ऐसा होता है। तो बिल्कुल इस बारे बिल्कुल। में आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो थॉट्स हम तभी अच्छा, क्योंकि जब तक हमारे लाइफ में कुछ पर्पस नहीं होगा ना, जो आप बोल रहे हो, कुछ करना है, इंपॉर्टेंट चीज करना है। जैसे हम लोग का अगर सुबह फ्लाइट है कैच करने के लिए 4 बजे, राइट, हमको अगर फ्लाइट पकड़ना है सुबह, तो हम रात में 11 बजे सोए या 12 बजे सोए, बराबर 2-3 बजे हम 2-3 बार अपने आप उठ जाते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा पर्पस है जाने के लिए। तो जब तक हमारे लाइफ में पर्पस नहीं होगा तब तक, और हमारा पर्पस सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का कोई अच्छा पर्पस होगा, किसी का, जैसे चोर होता है फॉर एग्जाम्पल, चोर का क्या पर्पस होता है, उसको चोरी करना है, तो उसका थॉट आता है, उसका पर्पस क्या है, उसको चोरना है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो अध्यात्म में होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, या स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका क्या थॉट होता है, दे वांट टू परफॉर्म द बेस्ट। उनको अपना सर्वस्व देना है और अच्छे से परफॉर्म करना है। जब वो एक पर्पस होना जरूरी है, तो वो पर्पस आपको कहाँ से मिलता है, नॉलेज से मिलता है। इसलिए मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी जब आएगा तो हमको पर्पस भी मिलेगा उससे। जब हम राइट काइंड ऑफ बुक्स भी रीड, वी सी राइट काइंड ऑफ थिंग्स, मुझे किसी ने बहुत अच्छा कोड भेजा था, डेफिनेटली पहले हम बोलते थे कि वी आर मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, राइट। ऐसा एक कोट रहता था कि जो इंसान है उसकी जो कंपनी है वो उससे डिसाइड होता है कि वो उसका चरित्र क्या इंसान का। तो मुझे किसी ने भेजा था कोट कि अ मैन इज नोन और अ पर्सन इज नोन बाय व्हाट सोशल मीडिया हैंडल ही और शी फॉलोज। तो हमारे लाइफ में हम सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया किस तरह का फॉलो करते हैं, हम क्या कंटेंट लेते हैं हमारे अंदर, हमारा इनपुट क्या होता है। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनपुट अच्छा जाए उसका फिर प्रोसेसिंग होगा और फिर आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट हमको सही जगह से आना जरूरी है और वो हमको स्पिरिचुअलिटी देगा। पहले स्पिरिचुअलिटी भी हम डिटेल में समझेंगे क्या है, लेकिन ये एजुकेशन बहुत जरूरी होता है स्पिरिचुअलिटी का। इज इट ओके और you want to add something more to this? I Risha have a has a question. question here. Yeah. does spirituality means कि हम 4 टाइम पूजा करें और सारे श्लोक बोलते रहे, भगवान के सामने बैठे Absolutely रहे? not. Absolutely not. It is not spirituality. इसलिए मैंने पहले बोला स्पिरिचुअलिटी इज एजुकेशन, कल्चर, डिवोशन। जो भी अगला स्लाइड है धर्म और रिलीजन, उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो आपका जो क्वेश्चन है वो अगले स्लाइड में आने वाला है। या ओके, आई गो अप। ओके, धर्म वर्सेस रिलीजन। Surely. जो वर्मा जी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि आप पूजा पाठ करना ही स्पिरिचुअलिटी है, नहीं, दैट इज नॉट रियल स्पिरिचुअलिटी। दैट इज, अगेन आई वुड से, दिस इज नॉट, इट इज इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इट। आपको अगर सही एजुकेशन है तो अलग चीज है, और वो करना जरूरी है क्या, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड कि धर्म और रिलीजन यानी यूजुअली क्या होता है, हम रिलीजन को, आई एम जस्ट थिंकिंग अ वर्ड फॉर दैट इन हिंदी। रिलीजन आप उसको बोल सकते हो अपना, जैसे हिंदू रिलीजन बोलते हैं, मुस्लिम रिलीजन बोलते हैं, उस टाइप का रिलीजन बोलते हैं। लेकिन धर्म जो होता है ना बहुत अलग है।
रिलीजन बेसिकली यू, आप एक किसी पंथ या किसी पाथ को फॉलो करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। ये एक पाथ होता है, वो ऐसा डिसाइड करते हैं, ठीक है। इट्स वन ऑफ द थिंग्स, रिलीजन इज वन ऑफ द थिंग्स, राइट। और उसमें कुछ रूल्स होते हैं आपके जो आप फॉलो करते हो। तो जो आप बोल रहे थे वो टिपिकली एक रिलीजन हो गया, और हर इंसान अपने अपने भाव के हिसाब से, अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो ट्रू स्पिरिचुअलिस्ट होता है ना, जो एक सच्चा स्पिरिचुअलिस्ट आध्यात्मिक होता है, वो हर इंसान को ना अपना स्पेस देता है हमेशा। तो ऐसा नहीं कि आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो, आपका गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किसी को उसके पाथ से डिस्करेज मत कीजिए, एटलीस्ट वो कुछ तो अच्छा कर रहा है। डेफिनेटली अगर बहुत ज्यादा गलत है तो एज अ फ्रेंड, एज देयर वेल विशर, यू कैन ऑलवेज टेल देम, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी को भी अपने फेथ से डिस्टर्ब मत करें। तो मैंने एक बड़ा अच्छा कोट सुना था, एक सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिससर्विस यू कैन डू टू समबडी इन लाइफ इज बेसिकली टू डिस्टर्ब समबडीज फेथ और डिस्करेज दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये हमको करना नहीं है। तो अगर वो कुछ फॉलो करे उसको करने दो, लेकिन उसको एजुकेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए किस चीज का, ठीक है। अभी मैं रिलीजन के बाद धर्म पे आता हूँ। व्हाट इज धर्म? धर्म जो होता है ना, हमारा एक स्वभाव है, इंट्रिंसिक नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर होता है, शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठा, इट इज स्वीट। सॉल्ट इज सॉल्टी, ठीक है। वैसे हर एक चीज का एक स्वभाव होता है। तो धर्म क्या है? हमारे अंदर का जो रियल नेचर है। तो हमारे ह्यूमन बींग्स का और लिविंग बींग्स का बात करूंगा मैं, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, जितने भी प्राणी मात्रा है, एनिमल्स है, उनका एक धर्म है। उनका धर्म पता है क्या है? टू सर्व एंड टू लव। दूसरों की सेवा करो और दूसरों को प्यार करो, और जब हम ये करते हैं तो हमको भी वो मिलता है। तो जो धर्म है हमारा, जो धर्म, तो बेसिकली मैं पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि हम लोग काफी बार बोलते हैं कि हम हिंदूज है, हिंदूज है, हिंदूज है, ठीक है। ये हिंदू ठीक है, हम रिलीजन के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी वैदिक टेक्स्ट को उठा के देखोगे तो उसमें हिंदू नाम का वर्ड ही नहीं है। देयर इज नो वर्ड एज हिंदू इन एनी ऑफ द वैदिक टेक्स्ट एट ऑल। ना भगवत गीता में आपको मिलेगा, ना श्रीमद् भागवत में मिलेगा, ना किसी भी वेद पुराण में मिलेगा आपको। अब बोलोगे फिर हिंदू क्यों बोला गया? हिंदू इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे, मुगल्स आए थे, उन लोगों को जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि हम सिंधु रिवर जो है, तो सिंधु रिवर के पार तो सिंधु बराबर से प्रोनाउंस है, हिंदू वो वर्ड वहां से आया हमको, ठीक है। तो फिर हम कौन है? हु आर वी? इफ यू आर नॉट हिंदू, यू मे से, आई मीन इट इज जस्ट शेकिंग अप द एंटायर फाउंडेशन। हम लोग हिंदू हिंदू करते रहते हैं, ठीक है। तो हिंदू जो वर्ड है उससे अच्छा वर्ड है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म, सनातन मतलब क्या हो गया? इटरनल, हमारा हमेशा से आता हुआ जो धर्म है वो हो गया सनातन धर्म। धर्म है हमारा जो स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव क्या है? इटरनली हम दूसरों की सेवा करें और दूसरे से प्रेम करें। दिस इज एक्चुअली रियल धर्म। और ये जो धर्म है हर इंसान अपने अपने हिसाब से अलग अलग लेवल पे प्रैक्टिस करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो, देखो, लव और सर्विस है ना, जो ये चीज आप ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो बोलेगा कि मुझे लव नहीं चाहिए या मुझे सर्विस नहीं चाहिए किसी से, या अदर वे ऑल्सो। हम हर जगह, हर क्षेत्र में किसी न किसी की सेवा करते हैं या किसी न किसी से प्रेम करते हैं। इसके बिना हमारा जीवन पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता। एक जो सबसे सेल्फिश से सेल्फिश व्यक्ति भी है, वो भी किसी न किसी से प्यार करता है और किसी न किसी की सेवा करता है। किसकी करता है वो सेवा? वो अपने खुद की करता है। और प्रेम भी किससे करता है? अपने से ही करता है। तो सबसे सेल्फिश व्यक्ति, तो उसमें वो आ ही गया है। और कुछ सेल्फलेस लोग होते हैं, हम दुनिया में देखते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कॉज के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जैसे कुछ एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो नेचर, जो हमारा जो अभी प्रकृति है, जो सृष्टि है, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन उस प्रकृति की सेवा में समर्पित किया। और हम समर्पित तभी कर पाते हैं, सेवा हम उसी की तभी कर पाते हैं जब हम उस चीज से प्रेम करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेम करते हैं तो सेवा नेचुरली आ जाती है। तो सेवा और प्रेम, आप दोनों को सेपरेट कभी नहीं कर सकते हो। ये एक इट्स अ कॉम्बिनेशन टुगेदर, इट्स अ कॉम्बो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर कोई बोलता है कि मैं सिर्फ प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, और वो सेवा नहीं करता है, तो दैट इज एक्चुअली नॉट सेवा, दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट रियल लव। तो लव इज एक्चुअली अ वर्ब। इंग्लिश में इट मीन्स इट हैज टू हैव एन एक्शन ऑलवेज। तो हमारा जो धर्म है, प्रेम करना और सेवा करना, ये हमारा धर्म है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं, श्लोक बोलते हैं, संस्कृत रिसाइट करते हैं,
ठीक है, वो सब कर रहे हैं, ठीक है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, हमारा भाव क्या होता है। इसलिए हमारे संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बोला गया है कि भगवान जो है ना भाव के भूखे है, हमारे प्रेम के भूखे। ही इज नॉट, भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या श्लोक बोल रहे हो। जैसे भी आप सब लोगों ने रामायण देखा होगा, राइट? रामायण में अगर आपने देखा होगा शबरी का एपिसोड, तो यूजुअली हमारे घर में जब हम कोई ऑफरिंग करते हैं, भगवान को कुछ बना के खिलाते हैं, तो यूजुअली हम लोग पहले उसको अच्छे से रखते हैं, झूठा नहीं करते हैं, उसमें तुलसी पत्र डालते हैं, अच्छा प्लेट होता है, फिर ऑफरिंग करते हैं, राइट? लेकिन शबरी जी के तो बेर खाए भगवान ने, और कैसे खाए? शबरी पहले झूठा करती थी, फिर भगवान को खिलाती थी। तो भगवान उस वक्त राम जी शबरी जी का डिवोशन देखे। तो स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली, जो मैंने पहले 3 चीज बोली थी आपको, एजुकेशन, कल्चर एंड डिवोशन। और डिवोशन जो है आपका हमेशा रहेगा। डिवोशन आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो स्पिरिट पे। नेवर यू कैन रिमूव डिवोशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। नाउ धर्म की मैंने बात की, व्हाट इज रियल धर्म? मैंने आपको बताया रियल धर्म इज बेसिकली टू लव एंड सर्व। लेकिन किस चीज को सर्व करना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो हम अलग अलग व्यक्तियों को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम बताता है हमको जो हमारा इटरनल धर्म है, सवई पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अदोक्ष जी अहितु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सो दिस इज एक्चुअली द रियल धर्मा। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो जीव है उसका जो सनातन धर्म है वो है भगवान को प्रेम करना और भगवान की सेवा करना। दैट इज एक्चुअली रियल रिलीजन। ठीक है। वो डिटेल्स वेरी हो सकते हैं, राइट? डिटेल्स वेरी हो सकते हैं। इनफैक्ट आप इस लाइफ में भी देख लो आप कि ये इतना इंटीग्रल पार्ट है लव एंड सर्विस का। जैसे हम बहुत लोग वैलेंटाइन डे बनाते, राइट? तो अभी वैलेंटाइन डे क्यों होता है आपके लाइफ में? मतलब वैलेंटाइन डे आप तो यार किसी से प्यार करते हो, कुछ करते हो, उसको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, उसको रेड रोज देना चाहते हो, राइट? ये सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम है वहां पे सेवा भी होती है, राइट? और ये पार्ट हो गया कल्चर का। ये भी आप एक कल्चर दे सकते हो। जैसे आज शायद ब्रदर्स डे बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आई डोंट नो व्हाट फिलोसफी, बट व्हाटएवर दे आर सेलिब्रेटिंग इट्स गुड, दे आर सेलिब्रेटिंग अ ब्रदर्स डे। तो ये कल्चर हो गया। फिर मदर्स डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है। ये कल्चर का पार्ट हो गया। कहीं से कहीं ना इनको एजुकेशन सही मिला, गलत मिला, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो हमारा जो कल्चर है वो हमको सिखाना चाहिए कि हम प्रेम और सेवा कैसे करें। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि मंदिर की जरूरत है क्या हमको? अगर जब आप बोल रहे हो कि हमको सिर्फ सेवा ही करना है, प्रेम ही करना है, तो मंदिर की जरूरत क्यों है? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप मुझे पूछोगे रियली अगर स्पिरिचुअल लाइफ आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेम्पल में नॉट बी नेसेसरी। ठीक है, मैं नॉट भी बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेसेसरी नहीं है। हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल नेसेसरी, वो घर पे बैठ के किसी भी जगह पे बैठ के भी पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई आप मूवी देखना चाहते हो, आप मूवी देख सकते हो, आपके मोबाइल पे भी देख सकते हो, राइट? अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, इतने सारे ऐप्स है, आप मोबाइल में भी देख सकते हो मूवी। लेकिन आप थिएटर में ही क्यों जाते हो मूवी देखने के लिए? क्योंकि उसका मजा, उसका आनंद जो आता है ना, वो बहुत अलग होता है, अलौकिक बोल सकते हो आप। जैसे बाहुबली, बाहुबली मूवी आप मोबाइल में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको स्टोरी समझ में आएगा। लेकिन उसका जो वीएफएक्स इफेक्ट्स है, उसके अंदर जो एक्शन है, उसके अंदर जो ड्रामा है, जो साउंड है, वो उसका एक्सपीरियंस आपको थिएटर में ही मिलेगा। बराबर है? तो फिर मूवी अगर मोबाइल में देखते हो तो थिएटर की क्या जरूरत है? मेरा सवाल ये है। उसी तरह से क्रिकेट, क्रिकेट क्या जरूरी है? क्रिकेट आपको स्टेडियम में खेला जाए, क्रिकेट तो आप गली पे भी खेल सकते हो। व्हाई इज द नेसेसिटी ऑफ सच अ बिग स्टेडियम? और कितना खर्चा होता है? बहुत सारे लोग ये बड़ा सवाल पूछते हैं हमेशा कि मन आप लोग इतना खर्चा क्यों करते हो भाई? तो मेरा सवाल, ठीक है, आपका सवाल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ टेम्पररी, और इसके ऊपर ऐसे मूवीज बने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी पूछे गए, ओ माय गॉड, पीके, हर चीज का एक लॉजिकल आंसर है उस मूवी के ऊपर भी। मतलब उस मूवी के ऊपर भी हम एक सीरीज ले सकते हैं लेक्चर्स का। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ये आंसर करूंगा कि आप ये सवाल कभी नहीं पूछते हो कि क्रिकेट में इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो, बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड्स में आप इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो, क्या जरूरत है? मूवी बन गया, अवार्ड आप अनाउंस कर दो, उसके घर पे होम डिलीवरी करा दो। वाई यू नीड अ बिग फिल्म फेयर अवार्ड? क्योंकि वो एक माहौल बन जाता है, हम उसको अपोज नहीं कर रहे। ठीक है, what logic I am trying to give here is, when you question temples, you should also question why you need all other things also in life. ये यूजुअली हम लोग नहीं करते। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इससे बड़े बड़े तरह के एकदम लॉजिकल, ऐसे लगता है क्या लॉजिक के साथ लिखा हुआ है। जैसे जैसे कोरोना शुरू हो गया था, लोगों ने मैसेज भेजना शुरू कर दिया था कि देखो मंदिर बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए। तो ये जो है ना, ये बड़ा पॉइजन जैसा है।
और बहुत सारे जो लोग हैं ना रैशनल थिंकिंग करते हैं, उनको लगता है वो रैशनल थिंकिंग करते हैं, उनको लगता है बड़ा लॉजिकल है यार, तो और फिर बोलते हैं कि मंदिर की क्या जरूरत है, इतना सोना क्यों है, मंदिर का सोना निकालो, बड़ा लॉजिकल लगता है अगर आप किसी कोई फाउंडेशन नहीं होगा तो। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि बाकी जो दूसरी जगह पे इतना पैसा खर्चा होता है, तो वो उस चीज को हम अपोज कर रहे हैं बेसिकली। तो जो टेम्पल होता है, टेम्पल आपको एक एनवायरमेंट देता है कि आप जो स्पिरिचुअल पाथ है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हाँ, ये बात सही है, मैं मानता हूँ बहुत सारे टेम्पल है हमारे इंडिया में। जो पर्पज होना चाहिए टेम्पल का, टेम्पल का एक पर्पज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया था, टेम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज होता है एजुकेशन देना। अभी अभी के जो प्रेजेंट टेम्पल है हमारे, यूजुअली बहुत सारे टेम्पल है इंडिया में जहाँ पे आपको भगवान की मूर्ति मिलेगी, भगवान की पूजा होगी, एक भगवान के हार चढ़ेंगे, लोग चढ़ावा लाएंगे, पंडित जी पैसा मांगेंगे, दक्षिणा मांगेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग होता है टेम्पल का। ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये बड़ा गलत अंडरस्टैंडिंग है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। इसका रीजन ये है क्योंकि जो फाउंडेशन है, एजुकेशन है स्पिरिचुअल लाइफ का, वो कहीं सही ढंग से पेश किया नहीं गया है। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि किया ही नहीं गया है, पर जितनी मात्रा में जिस तरह से करना चाहिए था उसको उतना नहीं किया गया है। तो इसलिए गलत अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो हमारा जो रैशनल थिंकिंग है, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड विचारधारा वाले लोग हैं, जिसको हम लेफ्टिस्ट, वामपंथी बोलते हैं। अगेन मेरा डिस्क्लेमर याद कर कीजिए, मैं किसी का हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल सेंटिमेंट, लेकिन ये सत्य है, सत्य को बोलना जरूरी होता है। जब तक आप सत्य को समझोगे नहीं, हमारा कल्चर तब डिस्ट्रॉय होगा। एजुकेशन तो हम लोगों का पहले ही खराब हो चुका है। हम लोगों को जो एजुकेशन मिलता है, हम आगे देखेंगे एजुकेशन किस तरह से मिलता है हमको और क्या मिलता है, ठीक है, वेदर इट इज रियल एजुकेशन और नॉट, ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो एजुकेशन का तो हमारा ऑलरेडी बैंड बजा के रखा है, राइट, ऑल दिस पीपल हैव डन इट। हाँ जय जी, कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैट पे। हाँ ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, आई टेक दैट, ठीक है, आई फिनिश दिस पॉइंट एंड देन आई टेक द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन, सॉरी, आई वाज एट अ पॉइंट, आई वाज टेलिंग कि जो जो हमारे जो एजुकेशन का पूरा बैंड बजा के रखा है, फिर जो हमारा कल्चर है, कल्चर भी इतनी तरह से चेंज कर दिया लोगों ने, इतना वेस्टर्न कल्चर, बीइंग मॉडर्न इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड इज द प्रॉब्लम, ठीक है। मॉडर्न रहो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने पूरी संस्कृति भूल के आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हो, वो गलत है। सो there is absolutely no problem what kind of lifestyle you want to live, what kind of clothes you want to wear, उसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि at the end of the day spirituality is all about your culture, education and devotion, ठीक है। तो टेम्पल होता है इन तीन चीजों के लिए, इससे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आएगी। तो आई कैन टेक सम क्वेश्चंस प्लीज। Yes, I am just reading those questions. Yeah, please. The first question is like, why we worship murtis and in temples? Okay, so that's a very good question and that's a very interesting question. मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा जरूरी है क्या, ठीक है। तो डेफिनेटली अगेन मैं फिर से एक फंडामेंटल चीज याद रख लीजिए, स्पिरिचुअलिटी में ये जो सारी एक्सटर्नल चीजें है ना, ये हमको सिर्फ हमारा एज लॉन्ग एज दिस थिंग इंक्रीजेज लव एंड डिवोशन, इट इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बिना भी अगर आप उस लेवल पे जा सकते हो भक्ति करने के लिए, यस यू कैन डू दैट, इट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट। जैसे ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज तो कहीं मंदिर में जाके मूर्ति पूजा नहीं किए थे, वो जंगल में जाके पूरा मेडिटेशन वगैरह किया था उन्होंने, राइट। और उनको भगवान सबके अंदर होता है, ठीक है। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडिया में कि कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान है, ठीक है। ये काफी, मैं बहुत सारा चीज अभी टच कर रहा हूँ, हर चीज को मैं डिटेल में, जब हमारा सेशन होगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं भी भगवान, तू भी भगवान, सब भगवान, नहीं, ये गलत है। हमारे अंदर भगवान का वास होता है, जरूर होता है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, अब देखो हमको कभी भी हम किसी को पैर लगा देते हैं, कुछ करते हैं, नेचुरली हम उसको टच करते हैं, ठीक है, उसको जाके प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इतना इनबिल्ट है हमारे, ये कल्चर है, ठीक है। उसका नॉलेज क्या है? नॉलेज ये है कि उस इंसान के अंदर भगवान का वास है, उसके अंदर परमात्मा रहते हैं। तो जब हमको नॉलेज होता है तो हम उसको कल्चर भी अच्छे से फॉलो करेंगे। इसीलिए आप देखो, क्योंकि नॉलेज नहीं है, आजकल लोग बर्थडे कैसे बनाते हैं? बर्थडे बम्स करते हैं। ये कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है ये, राइट। बर्थडे बम्स में क्या करते हैं लड़के, मैं तो कॉलेज में इतना देखा हूँ, वो बेचारा बर्थडे मतलब उसकी जिंदगी का बड़ा बुरा दिन होता है उस दिन, उसको इतना मारते, उसको इतना पीटते, आप केक लेके मुंह पे लगाते हो। ये कल्चर नहीं है हमारा। हमारा जो कल्चर था, बर्थडे बनाने वाला कल्चर था, हम जाके दूसरों की सेवा करें,
अब देख लो, आप अभी रामायण महाभारत कृष्णा नहीं, ये सब अलग अलग सीरियल देख रहे हो, उसमें क्या जी। कल्चर होता है, आप जाके दूसरों की सेवा करते हो, ठीक है। जय सो या हाँ, तो जो आपने कहा ना कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अभी हम हम्म ये भी करते हैं, हम बर्थडे बम्स भी मनाते हैं, मारते हम्म हैं, हम्म, केक भी लगाते हैं, और जाकर मंदिर में हम क्या बोलते हैं, चावल भी बांटते हैं। दिस ठीक इज है लाइक, लेकिन फिर अब वो करने में क्या खराबी, इट ठीक गिव्स है, मी प्लेजर, तो व्हाट इज द बैड? डेफिनेटली you should surely do something which gives you pleasure, but you need to have an understanding, ठीक है। ये जो चीजें जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमको आनंद जरूर आ रहा है, मजा जरूर आ रहा है, लेकिन एक, अगर आप एक सिंपल सा सोचोगे, थॉट प्रोसेस लगाओगे, आपको मजा आ रहा है, लेकिन उस सामने वाले को कितना मजा आ रहा है, उसको मार रहे हो, ठीक है। हो सकता है वो सामने वाला भी बोले नहीं नहीं मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरे दोस्त मुझे मार रहे हैं पकड़ पकड़ के, ठीक है, वो बोल भी दे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आप उस इंसान को, उसके अंदर भगवान का वास है, ठीक है। अगर आपको एजुकेशन मिले तो शायद आप ये नहीं करोगे। और जहां तक सवाल आया, केक भी आप मुंह पे लगाओ, क्रीम लगाओ, ये लगाओ, ठीक है, आपको अच्छा लगता है कीजिए, अगेन। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया डिस्क्लेमर में पहले, मैं जो यहाँ पे पॉइंट्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ आज से अब ये सब बंद कर दो। स्पिरिचुअलिटी जो है, रियल स्पिरिचुअलिटी, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो, यू कैंट इम्पोज योर थॉट प्रोसेस, और वैदिक कल्चर इज ऑल अबाउट इट। भगवान कृष्ण भी जब भगवत गीता बोलते हैं अर्जुन को, भगवान उनको अलग अलग नॉलेज देते हैं, और अर्जुन हमेशा उनको क्वेश्चन करता है, और एंड में पूरा नॉलेज देने के बाद भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं, देखो अर्जुन, मैंने आपको जो नॉलेज देना था वो दे दिया, अभी आपका चॉइस है, आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल लाइफ पे हमेशा हमारे पास में चॉइस होता है, ठीक है। तो डिस्क्लेमर में मैं बताना भूल गया कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो ही करना है। यू टेक योर टाइम, जब तक आपको उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, या जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं मिलेगा क्यों करना है क्यों नहीं करना है, तब तक शायद आप करते रहो उसको, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, शायद उस दिन आप उसको नहीं करोगे। तो जो मैंने आपको रीजन बोला क्यों नहीं करना चाहिए, पहला तो उसके अंदर भगवान का वास होता है, दूसरा आप उस व्यक्ति को फिजिकली हार्म करते हो। मेरे पास अभी स्टैटिस्टिक्स नहीं है आपको बताने के लिए, जरूर ऐसा होता है कुछ कुछ केसेस में कि वो जो लड़का होता है या लड़की होती है जिसको बर्थडे बम्स मारा जाता है, शायद उसको बैक में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उस वजह से। तो यू आर नॉट डूइंग अ सर्विस टू हिम, यू आर हार्मिंग। और केक जब आप खाते हो तो वेस्ट कर रहे हो। इतने गरीब लोग हैं, राइट, इतने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, या इतना पैसा मंदिर में क्यों चढ़ाना है, लेकिन जब केक वेस्ट करते तो गरीब याद नहीं आता है, ठीक है। मैं कुछ ओपिनियंस मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और मैं स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दूंगा क्योंकि जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि हम हर चीज जो भी होता है ना, जब भी बात होती है तो हम हमेशा उसको अपने धर्म से, और ये बताऊं मैं, ये सिर्फ हम लोग हैं, सो कॉल्ड हिंदूज बोलूंगा मैं, ठीक है, सनातन धर्म की बात नहीं करूंगा मैं, जो हिंदूज है ना वो लोग ही सोचते हैं। आप किसी और जो पंथ है वो लोग ऐसा कभी नहीं सोचते अपने धर्म के बारे में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो ये क्यों भी हुआ है ना, इसका रीजन भी है, क्योंकि हमारा जो धर्म है ना वो हमको फ्रीडम देता है सोचने के लिए। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। जो वेद है हमारे, वो हमारे ऊपर किसी भी, इनफैक्ट वेद में भी एथिज्म था। एक मुनि था, चारवाक मुनि जिसका नाम था, राइट, जो उसने भी अपना फिलोसॉफी लिखा। उसका फिलोसॉफी अगर आप सुनोगे तो बोलेगे वाह व्हाट, तो ही वाज अ एथिस्टिक पर्सन। उसने भी बुक लिखा है अपना। तो उसका फिलोसॉफी अगर ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये ओरिजिनल फिलोसॉफी चारवाक से आया हुआ है, ठीक है। तो वेद में हर इंसान को, हर प्रकार के इंसान को जगह थी। किसी को भी बोला नहीं जाता था कि आप गलत कर रहे हो, अभी आप यहाँ से उठ के ये, मतलब गलत तो बोला जाता था लेकिन उसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता था कि आपको यही करना है, ठीक है। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था वो क्या था? आई जस्ट मिस द लिंक व्हाइल आंसरिंग दिस। व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन? मैं the original question was why we need to go to the temples मूर्ति and पूजा वाला, मूर्ति पूजा का था, राइट राइट, मूर्ति की जरूरत क्यों होती है टेम्पल में, ठीक है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट ये बोला कि डेफिनेटली अगर वो आपको हेल्प करता है आपके स्पिरिचुअल लाइफ में तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट व्हाई इज इट देयर इन द टेम्पल स्टिल? बिकॉज वो हमारे अंदर का जो भाव है ना, वो भाव को जागरूक करता है। वी आर फिल्ड विथ इमोशंस, अगर इमोशंस, मूर्ति को देख के हमारे अंदर इमोशंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु कैन टेल दे हैव अ स्पेशल रेसिप्रोकेशन। एक पर्टिकुलर मूर्ति होती है, एक पर्टिकुलर देवता होता है जिसको देख के उनके अंदर एक स्पेशल फीलिंग आती है। वो फीलिंग एक बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग है। और वो ऐसा नहीं कि मुझे अगर इस मूर्ति से आ रही है तो आपको भी उसी मूर्ति से आएगी, नहीं, आपको शायद किसी और से आएगी फीलिंग,
तो ये जो मूर्ति होती है ये हमको फैसिलिटेट करता है, ये एक कैटलिस्ट बोलते हैं, कैटलिस्ट होता है साइंस में, यू नो, इट इंक्रीजेस योर डिवोशन एक्चुअली, ऑफ कोर्स इट टेक्स पार्ट आल्सो, कैटलिस्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, बट यहाँ पे जो मूर्ति होती है ये फैसिलिटेट करती है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को। तो जो भी चीज हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को फैसिलिटेट करती है वो करना जरूरी है। और उसका भी साइंस है, डीटी वर्शिप, जो मूर्ति पूजा बोलते हैं हम लोग, मूर्ति पूजा एक बड़ा ही डीप सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर भी हमें एक पूरा डिटेल सब्जेक्ट हो सकता है कि वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं होती है। हम लोग जब भी कोई भी टेम्पल इनॉग्रेट होता है, मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, उसको प्राण प्रतिष्ठा होता है। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, बड़ा डिटेल सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। तो इट इज नॉट जस्ट अ स्टोन, फर्स्ट ऑफ ऑल we need to understand it, yeah, but it definitely facilitates our devotion to God. Okay. Yeah. Any other next question? Yeah, the next question is, what should be the right attitude of the parents to teach religion and spirituality to their children? Yeah, should it so be first thing, or the first learning of a child starts at home? Is it not important for parents to be spiritual? Actually, आज के जमाने में क्या हो रहा है उसके रिलेटेड है ये। Yeah, very important question. I would say this would be one of the most important questions throughout the session. So how to do that? तो सबसे पहले इंग्लिश में एक proverb है, charity begins at home, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। देखो बच्चे है ना, हम बोलते हैं चिल्ड्रन learn more by what they see, not what we tell them, right? They catch the things very fast. तो अगर हम बच्चों को बोलेंगे आप स्पिरिचुअल बनो, ठीक है, लेकिन हम खुद ही स्पिरिचुअल पाथ नहीं फॉलो करेंगे तो वो कहां से सीखेंगे? तो बच्चे जो है ना, एग्जाम्पल्स, बच्चों को अगर बचपन से आप अच्छे एग्जाम्पल्स बताओगे ना तो बच्चे उतने अच्छे बनेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, शिवाजी महाराज, राइट, छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता ने हमेशा किसके एग्जाम्पल दिए? राम, कृष्ण, यू नो, ऑल दिस एग्जाम्पल, तो उनके रोल मॉडल्स थे। तो ये, और वो जीजा माता क्यों कर पाई? क्योंकि जीजा माता को भी उन्होंने फॉलो किया था अपने लाइफ में, राइट। तो जब तक पेरेंट्स अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और स्पिरिचुअलिटी इज एजुकेशन, कल्चर, डिवोशन, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये पॉइंट तो पक्का याद रहे कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्सटर्नल प्रैक्टिस, इट्स ऑल थ्री टुगेदर ऑलवेज, ठीक है। तो जब पेरेंट्स को एक अच्छा एजुकेशन मिले स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और वो जो प्रैक्टिस करेंगे, और उसको कन्विंस होना चाहिए पेरेंट्स को, ऐसा नहीं कि बिकॉज मुझे लगता है अच्छा है इसलिए उसने करना चाहिए। स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट अबाउट इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक और थ्योरेटिकल नॉलेज। ये आप वही इंसान बोल पाएगा जो अपने लाइफ में प्रैक्टिस करके उसके ऊपर उसको कुछ, उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन उसको मिला है, तभी वो बात कर पाएगा स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो लास्ट में उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि शुड पेरेंट्स ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअल, यस, दैट्स द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आप प्लीज बच्चों के ऊपर कभी भी किसी भी चीज का, शायद बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे मेरे सेंसर से, किसी भी चीज का आप बल से प्रयोग मत कीजिए। इनफैक्ट चाणक्य पंडित, मुझे वो श्लोक पता नहीं है, बट और एग्जैक्टली उसका ट्रांसलेशन इज समथिंग लाइक दिस, इट सेज दैट यू नो, बच्चा जब 5 साल तक होता है ना, उसको बहुत प्यार करना चाहिए। 5 से कुछ शायद 12-13 साल तक उसको थोड़ा डांटना चाहिए अगर वो सही से कुछ नहीं करता है। जब वो बाद में बड़ा हो जाता है तो उसके साथ फ्रेंड के जैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स जो है उनके टीनेजर्स बच्चे होंगे, तो ये अगर चाणक्य पंडित का, अगर हम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग अगर आप मुझे पूछोगे क्या है, तो चाणक्य का ये वर्स है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे ना, मतलब एक देखो, हमारा जो हमारे जो पुराने जो जमाने में लोग थे, यू नो, लाइक चाणक्य एंड ऑल अदर ऋषिज, उन्होंने हमको एक एक श्लोक में जीवन का सबसे बड़ा वरदान दिया, एक श्लोक में पूरा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है। तो आप प्लीज कभी भी बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स मत कीजिए। आप तो चलती बोल रहे हो, मैं तो बोलूंगा पढ़ाई के लिए आप उनको रेगुलेट करवाइए, बिल्कुल करवाइए रेगुलेट, पर इतना भी फोर्स मत कीजिए कि वो अपना पैशन जो है, जो वो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप उसको उससे दूर लेके जाओ। अभी मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड अ वेरी गुड एजुकेशन, वी प्रोबब्ली आर कंप्यूटर इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, यू नो, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। बट जब हम हमारे करियर में है 30-35 ईयर्स 40 ईयर्स जब हमने पास किया, हमको भी ये समझ में आता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट ऑल। देयर आर मेनी मोर थिंग्स, यू नो, दैट आर रिक्वायर्ड इन लाइफ, यू नो, मोर देन एकेडमिक नॉलेज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द लाइफ लेसन। तो बच्चों के साथ में अगर हम प्रेम से व्यवहार करेंगे विथ लव, एंड वी एक्चुअली, you know, they feel that love, then only it is possible
that they will understand it. तो बच्चों को सबसे पहले ये बहुत strong feeling होना चाहिए, ठीक है, कि my parents are there always for me and they would not mind anything. तो अभी मैं उसी पे और बात लेके जाता हूँ, क्योंकि टीनेजर बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत बार टीनेजर्स के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं. मैं रिकमेंड करूंगा, एक बहुत अच्छा बुक है, अगर आप पढ़ सकते हो सब लोग. पीटर बुरवॉश इज अ वेरी नाइस ऑथर. ही हैज रिटन अ बुक कॉल्ड डियर टीनेजर. तो अगर हो सके तो ये बुक जरूर पढ़ना. अगर आपको नाम याद नहीं है तो मैं शायद बाद में चैट में भेज दूंगा आपको. डियर टीनेजर. टीनेजर के साथ में ना पेरेंट्स को बहुत फ्रेंडली होना जरूरी है. उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको समझना जरूरी है. टाइम देना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में. अगर वो नहीं करेंगे ना, तो अभी देखो बहुत हो सकता है मेरा एग्जांपल 100% सही ना हो, लेकिन यूजुअली कोई भी घर से लड़का या लड़की, उसका लव अफेयर पता है क्यों होता है? क्योंकि उसको ना लव घर पे नहीं मिलता है. क्योंकि देखो, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला, वी आर ऑलवेज सीकिंग फॉर लव. तो इफ दैट पर्सन डजंट गेट लव इन होम, दैट पर्सन इज गोइंग टू लुक फॉर लव फॉर श्योर समवेयर और अदर. और बहुत बार होता है कि शायद आपको अच्छा इंसान भी मिल जाता है लाइफ में एंड थिंग्स गो रियली रियली वेल. बट वी हैव आल्सो सीन particularly in our community and many other places where they have ended up with some wrong people in their life. Okay, I would not say wrong people because you don't know whether they are right or wrong, but definitely हमको ऐसा लगता है कि उस इंसान ने गलती की है क्या. और कभी-कभी sorry, yeah, hello, yeah, we'll take another question. Sorry, yeah, I have to cut you yeah, out. please, thank you for that. Yeah, please. So as per your suggestion, it was like to convince them, not to impose that. So yeah, don't cut. You practice that. You preach by you example. practice it. You Yes. become an example for them. Then only they'll take it up. Surely. So another question is like, is it all about being selfish to protect our own dharma, though the dharma of another person is mutilated? So Can you come back again on the question? या क्या अपन दूसरों का धर्म डिस्ट्रॉय कर कर भी अपना धर्म बचाए, ये अपना धर्म है क्या? इज इट नॉट सेल्फिशनेस? नहीं, ये बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है शायद इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है धर्म का, तो देखो सनातन धर्म जो है ना, वो सनातन है और वो हर ह्यूमन बीइंग के लिए है. तो अगर कोई भगवत गीता से पढ़ेगा, सही ढंग से पढ़ेगा ना, उसको यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम या अलग अलग नहीं मिलेगा. हाँ, ये रिलीजन बोल सकता हूँ यहाँ पे. धर्म वर्ड इज द रॉन्ग वर्ड इन दैट क्वेश्चन. तो अगर किसी और का जो रिलीजन है उसको डिस्ट्रॉय करके, नहीं, इट नेवर टॉक्स अबाउट इट. स्पेशली अपना जो सनातन संस्कृति है उसमें हम किसी को भी, इनफैक्ट अपने इंडिया में वी हैव गिवन शेल्टर टू सो मेनी पीपल. वी हैव गिवन शेल्टर टू पारसीज, वी हैव गिवन शेल्टर टू मुगल्स. हम लोगों ने कितने ऐसे लोगों को शेल्टर दिया है. तो हम हमेशा शेल्टर देते हैं अगर उनका जो पाथ है स्पिरिचुअल पाथ प्रैक्टिस करने का वो अलग है. तो किसी को भी डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं. अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो ना किसी का, दूसरे का धर्म, या उसको धर्म नहीं बोलूंगा, किसी का रिलीजन अगर आप कोशिश करते हो, तो दैट इज नॉट अ राइट थिंग. बट देयर इज ऑल्सो अनदर साइड टू इट. ठीक है, देखो दो चीज होती है. एक तो होता है हमारा पाथ फॉलो करना. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी को, अगर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, ठीक है, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर ये नहीं बताते कि हमारे ऊपर कोई आए और हमारे संस्कृति के ऊपर आक्रमण करे किसी भी तरह का और हम चुप बैठे. इनफैक्ट भगवत गीता अगर आप मुझे पूछोगे एक वर्ड में, अगर मुझे भगवत गीता क्या है, भगवत गीता टॉक्स अबाउट फाइटिंग. व्हाट फाइट? फाइट फॉर द राइट थिंग. ओके, फाइट फॉर द राइट कॉज, फाइट फॉर अ राइट थिंग, फॉर अ राइट कॉज अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ राइट पर्सन. दैट इज व्हाट भगवत गीता इज ऑल अबाउट, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए. तो ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई अन्याय कर रहा है और उसको हम सहन करें. तो फिर उसके लिए हमको एक जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए. एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आल्सो टू ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट. जो हमारे जो गवर्नमेंट है, जो भी, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया हम उसके ऊपर जाकर आक्रमण करें. ये सही नहीं है. हमको एक प्रॉपर प्रोसेस में जाना पड़ेगा. आपको इसके अंदर सब लोगों को बहुत क्वेश्चंस होंगे, हमारा गवर्नमेंट ऐसा है वैसा है, ऐसा डिटेल थिंग. आई एम टॉकिंग द प्रिंसिपल्स हियर. डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं मैं यहाँ पे. इज इट फाइन आंसर? या ओके, एनीथिंग एल्स? So इसी से कनेक्टेड था कि सर टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक IS, हिजबुल क्लेम टू बी प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजन. तो ये रिलीजन को जो बचा रहे हैं, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल बिट? या, सो दैट्स व्हाट आई सेड. स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन है ना, उनको एजुकेशन बहुत गलत दिया गया हुआ है. उनको ना ब्रेन वॉश किया गया है. तो अभी जिहाद जो है ना, जिहाद वर्ड जरूर कुरान में है, ठीक है, लेकिन वो जो जिहाद है ना, एक्चुअली they don't understand it correctly. There are many Islamic scholars, we have the Kerala governor जो है, he is a very scholarly person. वो काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग देते हैं. तो जिहाद जो है ना हमारे अंदर, they tell that you kill the enemies within ourselves. तो हमारे सनातन संस्कृति में भी आता है कि हमारे अंदर जो एनिमीज है हमको उसको किल करना है. हमारे अंदर कौन से एनिमी है?
हमारे जो गलत डिजायर्स है, राइट, टिपिकली उसको 6 कैटेगरी में दिया जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन। ये जो है ना, इसको मारना है। लेकिन क्या हो गया, इसको लोगों ने बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों के लिए भी लेसन है। अगर हमारा जो वैदिक कल्चर है उसको हम अगर सही ढंग से सही लोगों से नहीं सीखेंगे तो इट कैन कॉज अ हैवॉक। तो वो उन लोगों का अंडरस्टैंडिंग है जो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर सेल्फिशनेस, और उसमें काफी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, काफी मनी इन्वॉल्व है। अगर आप डिटेल में जाओगे जिहाद के तो बहुत डीप रूटेड सब्जेक्ट मैटर है। वो सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पे वो लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, ठीक है। इसलिए नॉलेज और एजुकेशन जरूरी होता है कि सही ढंग से हमको सही जगह पे मिले। राजेश जी, राजेश बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, बेटा कब से पूछते जा रहा है, मैं उसको रोक के रखा है। हाँ, What should we do if we don't have control of our thoughts? What should we do if we don't have control? Very, very good question. Thank you for asking that. So, if you don't have control, you have to basically slowly and slowly, धीरे धीरे आपको उसकी आदत लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपको इच्छा होती होगी बहुत वीडियो गेम खेलना है, बराबर है ना, वीडियो गेम आपको पसंद होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं आपको पसंद है, आपको पसंद है वीडियो गेम? हाँ, बहुत पसंद है, राइट। तो वीडियो गेम आपको भी पता है कि लेकिन ज्यादा वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए आपने, राइट। ये आपको ये भी पता है, लेकिन आपका जो थॉट होता है ना, आपको बार बार लेके जाता है उसके पास में। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो गेम खेलना बंद करना है, आपको एक उसके अंदर, ठीक है मैं आज वीडियो गेम सिर्फ आधा घंटा खेलने वाला हूँ, आप उस आधे घंटे को खेल लो और उसके बाद उसको टच नहीं करना है। ये आपने खुद ने डिसाइड करना है। आपके पापा मम्मी आपको जरूर बोलेंगे कि बेटा आपको याद दिलाएंगे, ठीक है, लेकिन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि आपको लगता है कि पूरा दिन वीडियो गेम अच्छा है। क्या लगता है आपको, पूरा दिन वीडियो खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए। आपको नॉलेज है, बराबर है। तो अभी आपको ये नॉलेज है, तो आपको क्या करना है, उसको रेगुलेट करना है, राइट। कि मुझे अभी मैं सिर्फ आधा घंटा खेलने वाला हूँ, कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं वीडियो गेम नहीं खेलूंगा, मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो गेम खेलूंगा। देखो, आपको ना कोई भी चीज छोड़ना नहीं होता है। मैं आगे बताऊंगा जो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं स्पिरिचुअलिटी में। आपको कोई भी चीज अच्छी या बुरी पूरी तरह से नहीं होती है, उसको आप किस तरह से यूज करते हो और किस तरह से अप्लाई करते हो, उसका फिर बेनिफिट हमको मिलेगा। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप थॉट प्रोसेस चेंज करोगे, राइट। आप विराट कोहली को पहचानते हो? विराट कोहली देखे हो? हेलो, Yes. या विराट कोहली देखो, पहले ना उसको मैच में बहुत गुस्सा आता था, बहुत आता था गुस्सा। अभी भी आता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आता है, लेकिन पहले से काफी कम आता है, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत है। उसने धीरे धीरे उसको एग्रेशन को कम किया और वो बोलता भी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको टेस्ट करना पड़ता है। धीरे धीरे होगा बेटा, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको क्या है, कभी भी आपको उसके बारे में होप नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यूअसली उसको प्रैक्टिस करते जाना है, सोचते जाना है, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम। द क्वेश्चन इज, धर्म में श्रद्धा रखना क्या है, यानी श्रद्धा का बात, बस नीचे वाला जो पॉइंट अगर आप देख रहे हो, व्हाई नीड टेंपल, just joining more questions onto it. Practically धार्मिक कैसे बने, and the second part of it is like अंधश्रद्धा क्या है और उससे कैसे पहचाने। ओके, बहुत अच्छे सवाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक ही लाइन में इसका आंसर दूंगा, धार्मिक कैसे बने। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा समय निकाल के, ये जो सेशंस होने वाले हमारे 7 दिन जो भी चलने वाला है, इसके बाद में भी आप प्लीज वो अटेंड कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके जो सवाल है इसके आंसर आपको जरूर मिलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि पेशेंस की होता है, राइट। हाँ, मैंने मतलब एग्जांपल दिया था आपको कि एमबीबीएस करने में इतना साल लग जाता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पे क्या होता है ना, हम लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। देखो, जब स्पिरिचुअलिटी आप करते हो ना, इट इज नॉट अ टाइम वेस्ट, इनफैक्ट एनी गुड थिंग, इट इज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट 1-1.5 घंटा जो भी हम बात करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहेगा आपके लाइफ का। तो प्लीज आप इसको अटेंड कीजिए, आपको बहुत सारी चीजों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और फेथ की बात आई है, व्हाट इज श्रद्धा। तो श्रद्धा का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है, अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइन, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर तो बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं पहले बात करूंगा श्रद्धा की। क्या श्रद्धा सिर्फ रिलीजन में ही होता है? इज इट ओनली इन रिलीजन? नो, फेथ हमारे लाइफ में हर मोमेंट पे है, राइट। हर मोमेंट पे हम फेथ पे जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अगर
हमारे घर में दूध आता है, राइट, तो हम उसको टेस्टिंग नहीं करते कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ होगा या कुछ होगा। हमको श्रद्धा होती है कि दूध बहुत अच्छा है और हम दूध पी लेते हैं। श्रद्धा वहां से शुरू होती है। इनफैक्ट हम सोते भी श्रद्धा के साथ सोते हैं कि हम तो जो श्रद्धा है ना हमारे पार्ट का इंटीग्रल पार्ट है। जब आप ट्रेवलिंग करते हो किसी बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में बैठते हो, आपको विश्वास होता है कि ये जो बंदा है मुझे बराबर से लेके जाएगा। और पूरी दुनिया जो है ना, इट इज ऑन फेथ ओनली, राइट। अभी फेथ इज, ब्लाइंड फेथ इज नॉट गुड, बट गुड फेथ इज। गुड फेथ कैसे पता चलेगा कि सही फेथ है? आपको ब्रेन वॉश नहीं होता है। जैसे आई एम सॉरी टू गिव अ लिटिल फनी एग्जांपल, यू नो, हमारे देश में कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको एक परिवार पे इतनी श्रद्धा है कि उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया लोगों ने, राइट। तो ऐसी श्रद्धा की बात नहीं कर रहे। आपको श्रद्धा में क्वेश्चंस होते हैं। आपको अगर श्रद्धा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए मेरे पीछे आपको इतने क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो श्रद्धा हमेशा आपको क्वेश्चंस और आगे मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे, और उस क्वेश्चन को आपको आंसर भी देना जरूरी है, ठीक है। तो आई वुड से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप आस्किंग राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम, एंड फेथ इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आवर लाइफ एवरी मोमेंट। अभी स्पिरिचुअल फेथ की बात कर रहा हूं मैं। स्पिरिचुअल फेथ की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि आपको जो फेथ होना चाहिए किसी सुपर पावर में, एक सिंपल वर्ड में मैं आपको बोलूंगा तो कुछ सुपर है, बियॉन्ड हमारे कंट्रोल, उसके ऊपर हमको फेथ होना चाहिए, टेम्पररी। और फेथ आपको साइंस में भी है। जो साइंस हम लोग, जितने भी लोग साइंस सीखे हैं, ऐसा एक भी थ्योरम नहीं है ज्योमेट्री में, मुझे तो याद नहीं आता है इतने सारे थ्योरम में किए, हम हमेशा एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग दिस, एज्यूमिंग दैट। तो साइंस में भी होता है। अभी आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे अभी तो काफी स्टूडेंट्स छोटे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं पढ़ा होगा आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर होता है आई, विच इज इमेजिनरी नंबर। उसका नाम ही इमेजिनरी नंबर है। आप इमेजिन कर रहे हो उसको, मतलब उससे फेथ रख रहे हो। तो अगर वो इमेजिनरी नंबर आप निकाल दोगे तो आपका जो जितना सॉल्यूशन, आपको जितना भी मैथमेटिकल मॉडलिंग से आप उसका डिराइव किया, साइंटिफिक कैलकुलेशन किया, वो फेल हो जाता है। आपने कहीं ना कहीं श्रद्धा रखी। अंडर रूट ऑफ -1, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -1? I can ask the biggest mathematician in the world. He won't have an answer. It's assumption. It's an assumption, right? So you have to keep a faith. लेकिन आपको faith कहाँ रखना है, ये आपका चॉइस है। और ये आपका चॉइस कैसे बनेगा अच्छा चॉइस? अगर आपको सही एजुकेशन मिलेगा तो। करेक्ट सर, एक टीनेजर से क्वेश्चन है। एज अ टीनेजर वी ट्राई टू फॉलो आवर रिलीजन and try to understand what our parents say, but there is a near soul which tell us to follow the path which the rest of the world follows. ठीक है? So how should we overcome this thing as a child who does not completely know what actual religion is and what is right and what is wrong in the religion? So I would first of all actually want to thank that child. Is so honest, and actually ये उसका नहीं, काफी लोगों का प्रॉब्लम है। तो उनका जो क्वेश्चन है, if I understand it correctly, it is something like this, that कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमको कुछ करने बोलते हैं, लेकिन हमारा जो मन है या हमारा जो सोल है वो हमको कुछ और फॉलो करने बोलता है, राइट? तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? इज दैट द क्वेश्चन, राइट? अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है क्वेश्चन का तो। Even Prathamesh has a question. Let him ask, and then you can answer both of them together. If it's on the, yeah, please. सर, मेरा सवाल है कि अभी हम फेथ की बात कर रहे थे, और फेथ और बिलीफ जो चीजें जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, तो क्या ये के अपोजिट नहीं है? फेथ और बिलीफ। मेरा सवाल है कि जो आदमी बिलीव कर रहा है तो वो सीख कैसे कर सकता है? मतलब इफ समवन इज सीकर देन ही हाउ कैन ही बी अ बिलीवर? अगर वो पहले ही किसी चीज पर बिलीव कर रहा है या फेथ रख रहा है तो फिर वो कोई चीज ढूंढ कैसे सकता है? हाँ, देखो, अभी ये जो है ना फेथ और बिलीफ, ये वाले जो वर्ड्स है इंग्लिश में, डेफिनेटली दीज आर वेरी क्लोज वर्ड्स, दे आर सिनोनिम्स, यू कैन से दैट। बट फेथ हम ये नहीं बोल रहे कि आप, अभी जैसे मैं अभी आपको स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस भगवान पे विश्वास रखो या उस पे रखो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक इतना छोटा सा एक स्पार्क फेथ होना चाहिए कि इसमें शायद कुछ अच्छा नॉलेज है। एकदम छोटा, माइन्यूट बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा फेथ की जरूरत नहीं है। और जब आप पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। देखो, स्पिरिचुअल नॉलेज जो होता है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज आपके नॉर्मल नॉलेज से बहुत अलग होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट टॉट इन बुक्स, व्हेन यू प्रैक्टिस इट, जब आप उसका प्रैक्टिस करते हो तो आपको अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में आपका फेथ बढ़ता है। इसलिए भक्ति मार्ग में
एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप जो होता है, हर चीज का स्टेप होता है आदो श्रद्धा, दैट इज अ इनिशियल फेथ, एक छोटा सा फेथ चाहिए। क्योंकि जब तक आप मुझे बताइए, आप ऐसा कोई भी चीज नहीं है लाइफ में जो बिना फेथ के कर सकते हो। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ थिंग वेयर यू आर नॉट पुटिंग योर फेथ, गिव मी एनी एग्जांपल। कुछ तो फेथ हर चीज में है। जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसमें भी आपका एक फेथ है कि शायद यार दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू शाउट एट मी, इज गोइंग टू आंसर मी प्रॉपर्ली। कुछ तो आपको मेरे में विश्वास है कि यार इज गोइंग टू, सो एवरी मोमेंट when we get up we have a faith that we are going to speak, we are going to be alive tomorrow. There is a faith. So without faith life cannot exist, any kind of faith. जो एथिस्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर रिलीजन की ब्रह्म या धर्म की बात करें, तो एथिस्ट जो होता है वो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, बराबर है, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, नास्तिक बोलते हैं हम उन लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर वो भगवान में विश्वास नहीं रखता, इसका मतलब नहीं उसको किसी और चीज में विश्वास नहीं है, उसको किसी और चीज में विश्वास, उसको किसमें विश्वास है कि मैं कर्म करूंगा, मेरे कर्म से ही सब कुछ होगा, राइट, मैं करूंगा तो ही होगा, मुझे पैसा मिलेगा तो ही मैं जीवन में, उसको फेथ है बहुत सारी चीजों पे। भगवान पे नहीं हुआ तो अलग बात है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल फेथ की बात कर रहा हूँ, इट इज अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सब्लाइम, ठीक है। आपको किसी एक सुपर पावर पे छोटा सा एक माइन्यूट सा फेथ जरूरी है। नहीं सर, लेकिन अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि जो रिलीजन है, धर्म नहीं, जो रिलीजन वो ये होते हैं किसी एक बिलीफ पर, कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लाम की बात करें तो अल्लाह ही सुप्रीम गॉड है और मोहम्मद उसका लास्ट जो है मैसेंजर है। तो अगर ये बात हम पहले से ही मान के चलेंगे तो हम उसे आगे एक्सप्लोर कैसे कर पाएंगे कि ये गलत है। ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये इम्पोज किया होगा। वैदिक कल्चर जो है ना, वो आपको किसी भी तरह से, देखो वैदिक कल्चर का मैंने सबसे पहला वाला जो पार्ट बताया था मैंने, वेदांत सूत्र का पहला लाइन क्या था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर मींस व्हाट, देयरफॉर यू शुड इंक्वायर। अभी देखो कोई भी बुक लोगे ना, अभी देयरफॉर से शुरू नहीं होता है। वो देयरफॉर क्यों बोला गया है, देयरफॉर बिकॉज यू आर टेकन अ बर्थ एज अ ह्यूमन। और क्या बोला गया है, यू शुड इंक्वायर करना है, आपको इंक्वायरी करना है। अगर आपके ऊपर इम्पोज किया गया है ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जैसे कुछ रिलीजन है वर्ल्ड के, आई डोंट वांट टू नेम एनी रिलीजन, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, बट दे से दैट दिस गॉड इज द ओनली वे, दे टॉक अबाउट इट, राइट, यू कैन सी इट एवरीवेयर। नो, वैदिक कल्चर इज नॉट दैट। इनफैक्ट इवन दैट गॉड नेवर सेड दैट। ये जो बाद में जो लोग आए ना, इन्होंने काफी गड़बड़ी की है, राइट। हमको बहुत बार बोला जाता है कि हमारे कल्चर में ये किया गया, वो किया गया, ऐसा किया गया। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत सारी चीजें गलत हुई है पोस्ट when the few hundred years back, I accept it, but we are never told, हमको कभी बताया नहीं जाता है कि दूसरे कल्चर में क्या हुआ है, उधर कितनी गड़बड़ियां हुई है। तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे अपने इधर, जो वो गलत तो गलत है, लेकिन वो भी बताओ आप दुनिया को, राइट। सिर्फ इंडिया गलत है ये बताओ, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हो ना आप, ये फेथ नहीं है कि आप पहले से बिलीव कर दो, तो वो लोगों का गलत उनको टीचिंग दिया जाता है बचपन से, दैट इज ब्रेन वॉशिंग। दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन वॉशिंग। या वो पहला वाला क्वेश्चन क्या था प्रथमेश की, पहला वाला मैं भूल गया उसको। Yeah, we'll take that question. By the way, this will be the last question as we are already exceeding the time. Right. So right. I have few questions more, but we will be replying it to tomorrow, so that we can have a time-bounded meeting. So sure. जो मानसी का क्वेश्चन था ये था कि as a teenager we try to follow religion and try to understand our parents, what they say, but what is actual religion and what is right and wrong? So that's so basically क्या है, आपको जरूरी है, क्योंकि अपने इंक्वायरी आ रहा है ना, ये दिस इज अ वेरी गुड इंक्वायरी। तो डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, पहले तो हमको ये समझना चाहिए, हमारे जो पेरेंट्स है ना, हमारे बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो हमको जो बोलते हैं ना, बहुत बार हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, शायद बहुत बार हमको सही नहीं लगे वो। फॉर एग्जाम्पल बचपन में हमको बोला जाता था ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, ज्यादा चॉकलेट, हमको बुरा लगता था। वैसे ही लाइफ में जब अलग अलग फेज में जाते हैं तो हमारे चॉकलेट चेंज होते जाते हैं, ठीक है। बचपन में कैडबरी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में अलग अलग होते हैं। तो यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमको ना उन पे थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है बहुत बार हम उनके साथ रेजोनेट नहीं कर पाए, वो जो बोल रहे हैं उनका प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, यू शुड अप्रोच योर पेरेंट्स एज अ फ्रेंड ऑलवेज। और पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के साथ उतना फ्रेंडली रहे, उनको उतना एक ओपन एनवायरनमेंट रहे। अब बात आती है रिलीजन की, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बॉर्न हुए हो, एक पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न हुए, तो आपका एक कल्चर होगा जो आप बचपन से देखे हो, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे पूजा पाठ करते हो, तो आप वो करते हो, ठीक है।
दैट इज ओके, यू आर डूइंग इट, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको राइट है, और इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको क्वेश्चन भी करो। देखो क्वेश्चन मतलब रिबेल, देखो रिबेल करना अलग होता है और क्वेश्चन करना अलग होता है। रिबेल मतलब क्या होता है, आप पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर देते हो और आप बोलते हो सब कुछ गलत है, आप जो लोग कर रहे हो, मैं कुछ और मेरा पाथ देखना चाहती हूँ, चाहता हूँ, राइट। तो ये रिबेलियन हो गया। लेकिन इंक्वायरी क्या करना होता है, ठीक है आप ये कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आप सही से बताओ कि क्या सही, यू नो व्हाट इज द राइट पाथ। और हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमेशा हमको सब चीज का सारा आंसर दे पाए। तो एट दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स that they direct those kids to a right place for a right thing. You know, never discourage a inquiry from a kid. अगर बच्चा आपको कुछ पूछता है ना, उसको प्लीज डिस्करेज मत कीजिएगा कभी, उसको आंसर दीजिएगा, उसको टाइम दीजिएगा। अगर आप नहीं करोगे वो कहीं और सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, उनको गूगल आंसर देगा, राइट। उससे अच्छा हम आंसर दे दो, अच्छी बात है। Does that address the question to some extent? I believe yes. Okay. Of time, we have to stop it here now. Sure. मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पार्टिसिपेंट्स के मन में है, so we'll continue on these questions and on our topics tomorrow again at 7:30. I really want to thank you, Jayesh Bhaiya, and all the participants to make this session so interactive. We have our questions and we started getting the answers. That is really important कि क्वेश्चन आना और उसके जवाब मिलना. So with an hope that we all will be joining tomorrow at 7:30, I would like to stop here. Okay, thank you so much for giving me this opportunity. Or please stay tuned, stay patient. So we meet back tomorrow. Thank you. Thank you, Jay ji. Sure. Thank you very much. Sure. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Bye bye.